and which part of that change is physical, which part is chemical, all these. So that will be our today's motto. So we'll begin our class by chanting Omkaram 3 times. So all of you join your hands, close your eyes, and start Omkaram 3 times. Before chanting, fill your lungs with fresh air. ऐसे सांस लेनी अंदर, उसके बाद ओंकारम करना है बेटा. Sai Ram, once again welcome you all. So let us begin our work, right? Today's class. So first of all, let me share my screen. Yeah. And today who will be guiding me? Adib. Adib, you will be talking to me. Okay, beta. Good. Yes, sir. Yeah. So let me share my screen. And first of all, begin with the PPT. See the PPT. What can you see on the screen, Adib? Om Shri Sai Ram, Chapter 6, Physical and Chemical Changes. Okay. Yeah. Yeah. Now you can see date दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ बेटा. Yeah. So we learn about more changes, है ना? In the last class we discuss about many changes. Let us learn about more changes, right? And let me show your science book also. All of you, if are having, take out your science book, beta, right? And see it at page number 60, 60. Figure number 6.3. What is there? Adi, read it. Sir, magnesium ribbon Magnesium ribbon burning. And but actually, when the school will reopen, we'll go to the lab and I will show you magnesium, right? And we'll clean it with sandpaper and then we'll burn it. And remember, while burning, Sir, what is magnesium ribbon? मैग्नीशियम इज अ मेटल बेटा. इट्स अ मेटल, है ना? और इस मेटल को इट इज इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स, पतले शीट होते हैं और उसको पतले रिबन जैसे काटा होता है ना? रोल किया रहता है. ये एक मेटल है बेटा, है ना? मैग्नीशियम इज अ मेटल. और ये पतला शीट होता है, उसमें पतले पतले रिबन जैसा काट लेते हैं. दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन. इट्स अ मेटल बेसिकली. मैग्नीशियम इज अ मेटल. दीपावली में हम जो फुलझड़ी चलाते हैं ना, उसमें इसका यूज होता है बेटा, है ना? बट रिमेंबर, जब हम ये करेंगे तो उसमें एक वाइट लाइट आएगी. उस लाइट को देखना नहीं लगातार, नहीं तो आंखें दुखेगी रात को, है ना? क्योंकि ब्राइट लाइट देखने से हमारे आईज जो होती है ना बेटा, वो एडजस्ट नहीं कर पाती तुरंत. सो वी डू नॉट हैव टू सी. देख रहे हो कितना ब्राइट लाइट दिख रहा होगा आपको? फिगर में इतना है, तो नेचुरल होगा तो कितना दिखेगा आपको, राइट? जब नेचुरल करेंगे ना लैब में, तब उस समय की बात मैं कर रहा हूँ. तो अभी तो हम कर नहीं सकते. सो आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो, राइट बेटा? एंड सी दैट वीडियो. ओके? एंड एनी क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन. Yes, sir. राइट? आई हैव स्टार्टेड. साउंड बढ़ा लें तब तक. या अगर साउंड कम हो तो बोलना. Sir, please make it full screen. I'm doing बेटा, I'm doing. Hello scientific people, how are you today? So today I'm going to show you. Okay बेटा, sound clear? Sir, voice is low, please make it. Yeah my dear. बोलो आदिब, can you see बेटा? Yes, sir. Yeah. And sound must be also clear. So little bit मैं back कर लेता हूँ. Right now, है ना? Hello scientific people, how are you today? You all are scientific people. So today I'm going to show you the demonstration of a chemical reaction, that is burning of magnesium. So here I have a strip of magnesium. ये देखो मैग्नीशियम बेटा, देखो अदीब and all others. Yes, sir. मैग्नीशियम ये देखो रिबन की तरह रोल किया हुआ है. दुकान जाते हो ना रिबन खरीदने, ऐसे रोल में से देते हैं काट के वो. तो मैग्नीशियम एक्चुअली, है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड मेटल नहीं है ना? इट इज आई मीन सॉफ्ट मेटल है ये. तो आराम से ये इस तरह बन जाता है. तो इसने क्या किया, उसने एक स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया
and he will be doing this. तो little bit और back करता हूँ मैं, फिर मैं कुछ नहीं बात करूँगा, है ना? आप लोग सुनो पहले ध्यान से. Demonstration of a chemical reaction, that is burning of Sir, magnesium. voice is low. Please make it full. Here I have a strip of magnesium which is cut from the magnesium ribbon. कौन बोल रहा है वॉइस क्लियर नहीं है बेटा? अदीब. सर हर्ष बोल रहा है. Sir, हाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. ऑल अदर सर देखो दे आर फाइन. सो वेट इट बिकम्स करेक्ट बेटा. कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आती है ना, तो ऐसा हो जाता है हमारा, है ना? So this is the magnesium ribbon and this is Bunsen's burner and a watch glass in which I am going to collect the magnesium oxide, which is white in color. These are the pair of tongs. So when magnesium reacts with oxygen, it requires heat energy, and after initiating this reaction, you will see that the magnesium burns in presence of oxygen to form magnesium oxide, and magnesium burns in oxygen with a brilliant white flame. That is called a dazzling white flame. Very difficult to see that. So let's try the experiment, and here I am going to hold this magnesium ribbon. Actually, we don't require a very big piece of magnesium. It's very handy. You can even break it with your own hands. So I choose to put all other things aside. Even we can do with the candle also. Candle flame से भी हो जाता है As you बेटा. can see that magnesium burns ये देखो with a कितना dazzling white flame. लाइट देखो, dazzling light. Do not see it constantly when we are doing it naturally. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color is nothing but magnesium oxide. Even let's try to break it. This is white color powder. This white color powder is nothing but magnesium oxide. So as you saw, that magnesium burns with dazzling white flame. So hopefully guys, you have enjoyed the explanation. If you are not subscribed to my channel, please do that. Thank you for watching the video. Okay beta. So what could you see when the magnesium was burnt in the flame? It burnt with a dazzling white light and it formed a white ash which is called magnesium oxide. Okay beta, can you hear me? Yes, sir. Yes बेटा. अब देखना ये है कि मैग्नीशियम था बिगिनिंग में, ठीक है बेटा, और मैंने बर्न किया एयर में, इसको बर्न किया, एंड आफ्टर बर्निंग वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड. आर दीज टू द सेम थिंग? लेट अस स्टडी देयर नेचर. सो व्हाट शुड यू डू इन द लैब? You will get two type of litmus paper, blue litmus paper and red litmus paper. And you can recall, and we have studied the chapter acids, bases and indicators. Or you can use another indicator also beta. You can use phenolphthalein, you can use methyl orange, you can use Chandler's indicator, you can use turmeric paper. Use any indicator to check the nature of this magnesium oxide. और मैग्नीशियम एक रिबन है, एक मेटल है, इसको भी चेक करो, या तो इसको गीला कर लो या वेट लिटमस पेपर को रेड और ब्लू को बार बार इसके बाद लाओ, आप देखोगे नो चेंज टेक प्लेस. लेकिन आफ्टर बर्निंग क्या मिला हमें? व्हाट इज दिस कॉल्ड? मैग्नीशियम ऑक्साइड. powder. मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसके पास अगर लिटिल बिट वाटर डाल करके और वेट लिटमस पेपर लाओगे तो इट विल चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. इट मींस व्हाट इज द नेचर? सर बेसिक. बेसिक नेचर का है ये, राइट? और ये न्यूट्रल है मैग्नीशियम. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. सो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन we get magnesium oxide, which is a new substance. So what can you say this change? Physical or chemical? Chemical. Chemical change. Sir, chemical change. You are absolutely right. It's a chemical change. है ना बेटा? Now note down. You see your book. Book में देखिए आप, है ना? So it is given there. Collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture. That is, when we prepare a solution in water, it is called aqueous solution. Aqua का मतलब होता है water. नाम सुना है आपने? Aqua गार्ड इसलिए नाम है जो पानी को फिल्टर. Yes sir, सुना है. Aqua means water होता है बेटा. And any solution prepared in water is called aqueous solution. Underline कर लो ये, है ना?
कुछ कीवर्ड्स होते हैं साइंस के दैट वी शुड नो इट बेटा, नहीं तो मुझसे पूछते जाना। aqua solution, test the mixture with blue and red litmus paper. Does the mixture turn red litmus blue? Yes, it turns red litmus blue. It means we have to remember which, Akbar or Birbal? अदीब, याद आ रहा है कुछ? यस सर, यस सर। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये अकबर है कि बीरबल सर है? बेसिक है। अकबर की बीरबल? बीरबल। बीरबल। बीरबल है। बीरबल हमने पढ़ा था ना बेटा, वो ऐसे करके फिर एक बार बताते हैं आपको, तो आपको याद रहेगी। लेट मी सी, देखो मैंने बताया था आपको, एक बार फिर बता रहे हैं। कुछ लोग एब्सेंट होंगे तो कुछ लोग भूल गए होंगे। तो ये है हमारा अकबर और ये हमारा है बीरबल। ओके, तो अकबर का ए को अंडरलाइन करो, है ना, बी एंड आर। ए फॉर अकबर, ए फॉर एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, आ समझ में? यस और सर। बीरबल, बी फॉर बेस, बी फॉर बीरबल। सो बीरबल बेस, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अंडरलाइन कर लो 3 लेटर को। एसिड टर्न्स सर, कर ब्लू दिया। लिटमस इनटू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। कभी भी कंफ्यूजन हो, इसको याद रखो, अकबर बीरबल। कितनी कहानियां सुनाते हैं, सुनते हैं हम लोग अकबर बीरबल की, नहीं? तो एक बार साइंस में भी कहानी सुना दिया मैंने अकबर बीरबल की आपको, तो जल्दी से याद रहेगी। यस सर। हाँ बेटा, सो yes beta, now see, so on the basis, on dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. ये equation सब लोग लिखिए, है ना बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड plus water, it will give you magnesium hydroxide. Note down this, है ना? MgOH whole 2. Actually, when we dissolve magnesium oxide in water, है ना, it is called magnesium hydroxide, and it will change red litmus into blue. And we also have learned that magnesium hydroxide is a base. आपने देखा था एच चैप्टर में, है ना? So magnesium oxide is a new substance. पहले एक न्यू सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपने जब पानी डाला तो फिर एक और न्यू सब्सटेंस बना। वो क्या बना अदीब? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना हमारा, है ना बेटा? सो 2 न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड व्हेन वी आर बर्निंग मैग्नीशियम and collecting the ash, then adding water into that, right? So magnesium hydroxide, another new substance, and formed by mixing magnesium oxide with water. Now let us write down the chemical equation of all the reactions. नया पेज ले लें यहाँ पर तो मजा आएगा, है ना? या मिटा देते हैं, या करंट स्लाइड। यस बेटा, देखो ऑल द इक्वेशंस क्या क्या हुआ हमारा, ध्यान से देखिए, राइट? पहले क्या हुआ, हमने ये रिएक्शन लिखा था, उसके पास वीडियो में देखा होगा आपने, पेपर पे लिखा था Mg प्लस O2। हाँ बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखना, तो राइटिंग के लिए क्षमा करना, है ना? ठीक है, क्या बनाएगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अभी बैलेंस करते हैं बेटा, बताया था मैंने कि केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम बराबर होना आगे चाहिए। 2 आ जाएगा। हाँ देखो, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 आइटम है, यहाँ एक ही आइटम है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल चेंज कर सकते हैं। सर 2 लगा दीजिए यहाँ पर, तो नाउ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये देखिए, आप दोनों लिख सकते हो, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो आप फ्री हो लिखने के लिए, है ना, जो आपको पसंद है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हमारा हुआ। जब हमने जलाया मैग्नीशियम को, फिर हमने क्या किया, व्हाइट एश जो मिला था, मैग्नीशियम को पानी में डाल दिया हल्का सा। मैग्नीशियम को नहीं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाला, है ना? ये व्हाइट एश, व्हाइट ऐश्वर्या राय, इनको मैंने डाला वाटर में, पानी में डाला, है ना बेटा?
and then it gave you another Magnesium hydroxide. yes hydroxide. MgOH whole 2 ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना and this is a base so which turns red litmus Yes. into blue. So when magnesium is burned it forms magnesium oxide which is one new substance. When it is dissolved in water it gives another new substance magnesium hydroxide which is a base which turns red litmus into blue. So when we burn magnesium it forms two new substances magnesium oxide and then we add water magnesium hydroxide. So Magnesium hydroxide. this change we will call a chemical change. Okay, understood beta? Although we Yes, are not sir. in the lab but could you feel like lab? Yes, sir. Yes, sir. हाँ पूरा नहीं लग सकता Yes, बेटा, sir. केवल चल जाएगा बेटा. चलो एक दूसरा एक्टिविटी देखें हम. बुक देखिए पहले अपने आप बुक देखिए अपनी. सी योर साइंस बुक बेटा. साइंस बुक देखो. अनदर वन है ना. ये है टू बी डन बाय द टीचर. हमें करना है लैब खुलेगा तो लैब में भी करेंगे. याद कराना मुझे है ना. आपने लैब में देखा होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो क्लास 6 में आपने यूज भी किया होगा फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन. याद आ रहा है शुभ्रा? Yes, sir. है ना बेटा. ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है लैब में. इसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा. एंड वन मोर नेम ब्लू विट्रियोल इसका है. कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम याद कर लो ब्लू विट्रियोल. दिख रहा है स्क्रीन सबको? ये ब्लू विट्रियोल. Yes, sir. एंड इन हिंदी वी कॉल इट नीला थोथा. लाल रंग का नीले रंग का होता है इसलिए नीला थोथा बोलते हैं. ठीक है बेटा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू Yes, sir. अनदर चेंज. वी विल टेक ये बीकर होगा एक. देखो कहीं फिगर होगा बीकर का. या देखो बेटा है ना. इन अ बीकर or in any small container glass container which is transparent take copper sulfate solution है ना बेटा and add iron blade और iron nail भी डाल सकते हो इसमें. iron nail. Now when we put iron nail in copper sulfate solution what happens? Do we get new substances and does the color of the solution also changes and what type of change it is? Let us see another video because you are not in the lab. So let us see. है ना. देखना चाहोगे बेटा? Yes, sir. Yeah. Let us see. Yes, sir. Another one activity. Reaction of copper sulfate solution and iron nail or iron blade. एक ही बात है बेटा. ठीक है ना. So let us see this. Yes, sir. And again note down the questions if you want to ask. Reaction of iron nails with copper sulfate solution. In this module, you will Sir, learn its voice was too low. reaction of iron nails. हाँ बेटा. After Sir, इसकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही. थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगा ये. Okay. Yes, sir. Better बेटा. With copper sulfate solution. When an iron object is kept in copper sulfate यहाँ ध्यान से देखो. What is actually मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखो you have seen in the lab it's a test tube है ना अदीब. टेस्ट ट्यूब है बेटा ये. Yes, sir. Yes, sir. एंड टेकन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखो लिया और धागे से एक आयरन नेल को अच्छे से क्लीन करके सैंड पेपर होता है जानते हैं ना सैंड पेपर जिससे हम साफ करते हैं जंग वगैरह छुड़ाते हैं. Yes, sir. सैंड पेपर बहुत रफ होता है वो. तो उससे क्या किया नहीं मिले तो कोई बात नहीं पत्थर पे रगड़ देंगे. देखो साइंटिफिक पीपल हैव सॉल्यूशंस ऑलवेज है ना. जुगाड़ कबाड़ से जुगाड़ हम करते हैं. क्या कहते हैं उसको हम लोग? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. वेस्ट में से कुछ बेस्ट निकाल लें. हिंदी में बोलते कबाड़ से जुगाड़. कुछ कबाड़ से भी जुगाड़ कर लेते हैं हम वो हैं. वी आर इंडियन एंड वी नो हाउ टू यूज वेस्ट ऑल्सो है ना. वी आर रीयूज करते हैं हम चीजों को. हम फेंकते नहीं चीजों को है ना बेटा. हम लोग यूज एंड Yes, sir. बिलीव नहीं करते. हम लोग रीयूज करते हैं बार बार यूज करते हैं कि रिसोर्सेज को हम जितना यूज कर सकें उतना करते हैं और करना चाहिए बेटा है ना. कभी एक कहानी सुनाने मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा एक रिसोर्स का कितना मैक्सिमम यूज होता है वो है ना. यू विल लव दैट स्टोरी है. Yes, अभी वो sir. बात नहीं है. यहाँ देखो बेटा तो आयरन नेल क्लीन करके है ना इसमें डाल दिया. किसमें? इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. Copper sulfate solution में. ठीक. नाउ लिसन
the color of the object as the copper sulfate solution changes. Let us perform an activity to find out the details of this color change. For this activity, you will require iron nails, sandpaper, test tubes, copper sulfate solution, thread, clamp stand, and test tube stand. Take two test tubes marked as A and B, and in each test tube pour about 10 milliliter of copper sulfate solution. Fix test tube A on the clamp stand and keep the test tube B as control sample test tube stand. Now, take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution. Be careful, जोर से नहीं गिराना है, नहीं तो टूट जाएगा अगला टेस्ट ट्यूब. 20 minutes Slowly. and keep the third nail aside. After 20 minutes, take out the nails and put Yeah. them beside the unused. Can you see changes? After 20 Yes, sir. you can see something there on the nail, reddish brown deposit, right? It is actually copper, है ना? Copper is displaced from the solution. Copper sulfate में जो copper था उसको iron ने displace कर दिया और उसके ऊपर आ गया है, और iron nail will react with copper sulfate solution. You will find that the solution will be changing into different color. Green color का हो जाएगा जो कि ferrous sulfate solution है, another new substance form. Okay, now see its explanation. इसको देखो, सुनो. Yeah. Now compare. Do you observe any change? On comparing both the nails with the unused nails, you will find that the iron nails, See the change. which are kept in the copper sulfate solution, have developed a reddish brown layer. of Reddish brown layer, है ना बेटा? Take out the test tube A from the clamp stand and keep it beside test tube Now B in comparison. compare the color of the solutions. This is blue in color, and this one is the Light green in color. light green in color. So it means another new substance formed. This is ferrous sulfate solution, right? Which was Sir, formed what? ferrous sulfate, iron sulfate solution, iron sulfate solution. है ना बेटा? Now listen. On comparing both the solutions, you will find that the original deep blue color of the copper sulfate solution has faded away. What is the reason behind these changes? When iron nails are dipped Note down in this copper equation, beta. sulfate solution, Note down this equation. देखो ये copper sulfate solution and iron nail was put into that. So symbol of iron is Fe and formula of copper sulfate is CuSO4. So these two react together. Actually, it's a displacement reaction. Copper is less reactive than iron. Iron is more reactive than copper. So iron says copper, okay, go away from here, and it takes its position and new substance is formed, that is ferrous sulfate, or you can add on iron sulfate, and copper is displaced. इसका कॉपर इससे छीन लिया, इसने कॉपर को भगा दिया और खुद जगह लेकर के न्यू सॉल्यूशन. फेरस सल्फेट कलर ग्रीन होता है बेटा, इसका बनाओगे ना सॉल्यूशन ग्रीन कलर का मिलेगा, इसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. इट मींस कैन यू कॉल इट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? अदीप? Sir, chemical change. Chemical change. Okay. the iron metal reacts with copper sulfate, which results in the formation of ferrous sulfate and copper metal. In this reaction, iron being more reactive than copper displaces copper from the copper sulfate solution You can see. and forms ferrous sulfate. It's only which explanation is बेटा, है the ना? deep blue color देखो of the solution. exchange of copper ion and They iron ion taking displace place. copper, then deposits on the iron layers in the form of a reddish brown coating. Since in this reaction, a more reactive metal iron displaces
a less reactive metal copper from its compound is a displacement reaction. Actually, In this module, it's an we have example of learned that iron metal डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है ये, ठीक है बेटा? ओके, so got it. Let me take attendance also. Only 17 of you are there today. I have not attended. Where is this heartening? 20 दिखा रहा है इसमें तो, 18 दिखा रहा है. ओके, so you could see बेटा, है ना? ऐसे आप आयरन प्लेट Yes, को sir. डालेंगे ना, अभी तो you cannot get copper sulfate solution. Otherwise, I could have given you to use it, and be careful. It's a fungicide. ये फंगस को मारता भी है, copper sulfate solution. So when you use it, you should wash your hands also. Okay, बेटा? So you could see now. See your book, all of you. Look at your book. See बेटा, है ना? This is देखो. So what are the reaction taking place? Copper sulfate solution, blue in color, plus iron metal. What is formed? Iron sulfate solution. Iron sulfate solution. It also called ferrous sulfate बेटा. आयरन के लैटिन नेम है फेरम. नाम को सुना? लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरम, है ना? लिखूं बोर्ड पे क्या? Yes, sir. देखो देखो, ये आयरन, इट है लैटिन नेम. इसका लैटिन नेम है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, विच इज कॉल्ड FERRUM, फेरम. और इसी से सिंबल इसका मिला है. सिंबल जो लिया है ना, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. FeSO4. या Fe मतलब आयरन का सिंबल है बेटा, आयरन. SO4 सल्फेट आयन का सिंबल है. SO4 ये सल्फेट आयन का सिंबल है, सल्फेट आयन, है ना? तो आयरन, इसीलिए इसे हम Yes, फेरस, वैलेंसी 2 होती है यहाँ पर, फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, है ना? बहुत सारे मेटल एलिमेंट्स के सिंबल जो है ना, लैटिन नेम से लिए हुए हैं. अच्छा, कौन बताएगा? सिंबल ऑफ लेड मेटल. लेड का सिंबल बताओ. Sir, what? लेड, LEAD, लेड, सिंबल ऑफ लेड. मैंने कहा था ना, आप लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे सिंबल याद करो, है ना? इसका सिंबल होता है PB, कैपिटल P स्मॉल b, क्योंकि इसका लैटिन नेम है प्लम्बम. चलो, आपने 6 में पढ़ा होगा टॉर्च बल्ब, एंड द फिलामेंट ऑफ द टॉर्च बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, है ना? सो हु विल टेल मी symbol of tungsten? PB. No, my dear. Symbol of tungsten. इसका लैटिन नेम है ओल्फ्रम. लैटिन नेम है ओल्फ्रम. ओल्फ जानते हो ना? बहुत खतरनाक एनिमल है. ओल्फ्रम, WOLFRUM, ओल्फ्रम. सिंबल क्या होगा? W होता है सिंबल इसका. टंगस्टन का सिंबल है W. है. तो हम लोग बात कर रहे थे एक्टिविटी की, नहीं? यस बेटा. So see, when copper sulfate solution, in copper sulfate solution, we put iron blade or iron nail. New substance is formed, which is iron sulfate solution, and its color is green. And copper metal gets deposited in the form of reddish brown layer on the iron nail, है ना? और अगर पूरा Yes, आयरन sir. नेल रेड कर जाएगा तो कॉपर मेटल नीचे कंटेनर के नीचे आपको, ये नीचे आपको कॉपर का मेटल नीचे पाउडर के फॉर्म में आपको नीचे मिल जाएगा, अगर पूरा का पूरा ब्लेड रेड कर जाएगा तो, है ना? अदरवाइज ब्लेड के ऊपर और कुछ थोड़ा सा नीचे गिराव मिलेगा आपको. सो व्हाट वी कंक्लूड दैट, है ना, व्हेन iron nail or iron blade is put in copper sulfate solution, new substances are formed, so it is a chemical Chemical change. change. Okay, now let us, we have time, one more activity we can conclude, right beta? Yeah, see, at your home you can do this, okay, and I'm telling you everything. आप घर में जरूरी नहीं बीकर वगैरह हमारे पास हो,
कोई भी एक बॉटल में, और प्लास्टिक की बोतल होती है ना जो फेंक देते हो आप, उसमें कर सकते हो। यस सर। कैप में होल करके और उसमें कोई भी ट्यूब जैसा या अपना वो रिफिल है, रिफिल को हल्का सा बेंड कर लोगे, है ना, कैंडल के फ्लेम में दिखा दिखा के तो भी बन जाएगा। या कोई रबर की ट्यूब हो इस तरह, उससे बना सकते हो आप। तो क्या करना है, इसमें लेना है आपको बेकिंग सोडा, आता है ना बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा किचन में यस होता है, सर। सोडियम बाइकार्बोनेट, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? यस सर। What is the formula? Baking soda. NaHCO3. Yes, that is correct. Very good बेटा, है ना। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaH, सब पास में रहेगा तो दूर मत लिखना, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लोग डॉक्टर बोलते हैं सोडी बाइकार, सोडी SODI बाई BICAR कार, सोडी बाइकार भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, है ना बेटा। सो यू सी योर बुक देखो आप, तो बेकिंग सोडा लेना है, आप यूज कर सकते हो कोई भी प्लास्टिक बॉटल में यूज करना बेटा। नेक टाइट होना चाहिए इसका कैप, उसमें होल करके एक रबर ट्यूब डाल देना, जो गैस बनेगी वो बाहर निकलेगी। ओके बेटा, एंड राइट नाउ नथिंग, आई मीन यू विल नॉट ऐड समथिंग, रबर ट्यूब लगा करके इस रेडी हो जाना। और दूसरा टेस्ट ट्यूब में, या दूसरा कोई आपका करना ग्लास का, ग्लास ले लेना, ग्लास टम्बलर ले लेना, या ट्रांसपेरेंट कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट या दूसरा बॉटल ले लेना। उसमें क्या लेना है, लाइम वाटर। नाउ व्हाट इज लाइम वाटर? हाउ, चूने का पानी। हाँ, चूने का पानी। तो कैसे इसको बनाते हैं वो बताते हैं आपको, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा आपको, और हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करना चाहिए, तुरंत बनाओ तुरंत यूज करो, ठीक है बेटा। सो लाइम वाटर कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना आप। लाइम लाएंगे, दुकान से जाएंगे, फिर पंसारी की दुकान से बोलेंगे हमको कली चूना दीजिए, क्या बोलोगे? कली चूना। कली चूना, कली जो फूल खिलता है ना, कली चूना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्विक लाइम। फॉर्मूला होता है CaO, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक, क्विक होता है ना, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। इसको टाइप करना कंप्यूटर में, आपको ऑल 26 लेटर्स में फिंगर घूम जाएगा आपका। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, सिंगल सेंटेंस है, इसको टाइप करोगे तो पूरी उंगली आपको 26 लेटर पे चली जाएगी, आप इसका मतलब पूरा सीख जाओगे टाइप करना कंप्यूटर कीबोर्ड पे, है ना। एंड डू नॉट सी एंड टाइप विदाउट सीइंग द कीबोर्ड, दिस होल सेंटेंस लर्न करना। ये देखो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ले आना बाजार से, और एक कटोरी लेना, है ना बेटा, उसमें थोड़ा सा पानी लेना, या पहले इसको रख देना कटोरी में, फिर पानी डालना, क्या डालोगे इसमें? वाटर, यू नो। जैसे ही पानी डालोगे, अच्छी क्वालिटी का मांगना है कैल्शियम ऑक्साइड, दीपावली में हम लाते हैं पुताई करने के लिए। जैसे ही डालोगे पानी बेटा, व्हाट विल हैपन? हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, हिसिंग ऐसे, एंड स्टीम विल कम। सर जब हम पानी डालते हैं तवे पे, हाँ, तो ये बनाएगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2। इट इज कॉल्ड क्विक लाइम, इट इज कॉल्ड स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड, SLAKED, स्लेग्ड लाइम, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा पूरा, जो क्विक लाइम है पहले वो पत्थर ऐसा रहेगा, और वो पूरा फूट करके फैल जाएगा पानी में। थोड़ा और पानी डाल करके स्टार वेल अच्छे से घुमा देना, एंड अलाउ इट टू स्टैंड, दैट इज फॉर सेडिमेंटेशन। धीरे धीरे ये जो स्लेग्ड लाइम है वो नीचे बैठ जाएगा, है ना, और ऊपर क्लियर वाटर निकलेगा, दैट इज इसको फिल्टर कर लेना या धीरे से डिकेंट कर लेना, दैट इज योर लाइम वाटर। सो लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सिर्फ पानी लेते हैं, बहुत काम का चीज है, पता है। अगर कहीं जल जाए आपको अचानक से, कहीं फ्लेम से जल जाए ना, तो ये लाइम वाटर, चूने का पानी और नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, दोनों को मिला के लगा दो, आपकी जलन बहुत जल्दी शांत होगी और जल्दी से ठीक भी हो जाएगा आपका। स्मॉल मेडिसिन है ये, ठीक है बेटा। तो ये लाइम वाटर बनाएंगे पहले, ओके। यस सर। लाइम वाटर इसमें लिया हमने, बना लोगे लाइम वाटर अब लोग, सभी लोग? यस सर। गुड। अब इस लाइम वाटर में हम क्या करेंगे,
ये जो इसमें आप डालेंगे हम विनेगर, विनेगर मिल जाएगा गोलू अंकल की दुकान में, है ना, और जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ मिल जाएगा ये आपको, जो भी साडारागढ़ में रहते हैं या कुंभराज में। तो नाउ बेकिंग सोडा एंड ऐड विनेगर और ये क्लोज कर दो, कैप लगा दो, फिर यहाँ से गैस बनेगी ये। डू यू नो व्हिच गैस विल बी फॉर्म्ड? Baking soda plus Carbon vinegar, dioxide. it forms carbon dioxide gas, right? ये गैस यहाँ से ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगी? It will लाइम go into वाटर lime में। water। और जैसे ये गैस जाएगी, लाइम वाटर जो कलरलेस था, इसका रंग बिल्कुल कलरलेस होगा बेटा। It will change into milky white, इसका रंग दूधिया हो जाएगा, मिल्क दिखेगा, है ना। Actually what happens when carbon dioxide gas is passed, see this line, दिख रहा है आपको सबको? यस सर दिख रहा है। Yes, sir. Carbon dioxide gas is passed into lime water। देखो दोनों बात लिखा हुआ है, वर्ड भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। CO2 plus COH whole 2, it forms another new substance which is a white color precipitate। white color का होता है और वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में, इट इज इनसॉल्युबल। तो इसमें एक नया तरह का सब्सटेंस बना है जो इनसॉल्युबल है और व्हाइट कलर का है, इसलिए इसका पूरा कलर क्या हो जाता है? मिल्की व्हाइट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट बना, CaCO3 प्लस वाटर। एंड कौन गा रहा है गाना भाई? बेटा मैं कितनी बार समझाया ना, प्लीज। शुभ्रा सर शुभ्रा का माइक कौन था? हाँ, कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बेटा। When अंडरलाइन कर लो ये, when carbon dioxide gas is passed through lime water, calcium carbonate is formed which makes lime water milky। क्वेश्चन आएगा, why does lime water turns milky when carbon dioxide gas is passed into lime water? ओके और अगर लंबे समय तक बार बार पास करोगे CO2 गैस तो लेटर ऑन मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि अनदर न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर मिल्की डिसअपीयर हो जाएगा आपका। इसलिए थोड़ी देर के लिए पास कराते हैं चेक करने के लिए ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा, है ना। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, but when we pass it for longer period milkiness disappear because of the formation of another new substance which is called calcium बाइकार्बोनेट, CaHCO3 whole 2, right? So here see the changes। पहले यहाँ कोई चेंज हुआ ना, आपने बेकिंग सोडा में विनेगर डाला, is this physical change or chemical change? अदीब सर केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज, क्योंकि क्या चीज नया बना? सर कार्बन डाइऑक्साइड बना इन दोनों से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, नई चीज बन गई यहाँ पे। और एक और चीज बनता है इसमें, ठीक है, सोडियम एसीटेट भी बनता है इसमें, है ना, एक नया सर सॉल्ट क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। है अब देखो इस गैस को हमने पास किया लाइम वाटर में, तो यहाँ पर भी एक नया चेंज आया, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नया चीज बना? सर मिल्की कलर का हो जाएगा वो। हाँ वो क्या चीज था? सर कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना, अनदर न्यू सब्सटेंस। और अगर आपने देर तक CO2 पास कराया तो फिर क्या बना? सर मिल्की कलर डिसअपीयर। हाँ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ soluble calcium bicarbonate। So in this small activity we have seen lots of chemical changes, isn't that? यस सर। Yeah, good। So today we conclude this here। In the next class I'll show a video of passing lime water passing carbon dioxide gas in lime water, वो दिखाएंगे। और फिर एक मैं आपको बता के जाता हूँ अभी, है ना, लेट मी कम टू दैट पार्ट। या गूगल मीट माने दो, अटेंडेंस का ले लो आपका। यस सी बेटा, आज आप कर सकते हो एक एक्टिविटी, ब्लो एंड मेक मिल्क, फूंक मारो दूध बनाओ, करना पसंद करोगे? यस सर। आपको करना क्या है, लाइम वाटर बनाना पड़ेगा। लाइम वाटर ले लो ग्लास में और एक स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ को मुंह में ले लो
ब्लो एयर इनटू दैट। आप देखो थोड़ी देर के बाद में पूरा लाइम वाटर मिल्क जैसा बन जाएगा, लेकिन पीना मत भैया, ये मिल्क नहीं है। चूने का पानी है। चूने के पानी में नया चीज बना, क्या बना? यस सर, सर कैल्शियम मिल्क कार्बोनेट। जैसा बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट बना उसमें, वो खाने चीज थोड़ी है ना। लेकिन मिल्क Yes, जैसा दिखता है sir. इसलिए हम बोलते हैं फूंक मारो मिल्क बनाओ। लेकिन अगर आपने देर तक फूंक मारे तो फिर देखोगे मिल्क ने डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब एक नया चीज बना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। अब इसी को और जल्दी करना चाहते हो तो स्ट्रॉ को नाक में डाल लेना, एक नाक बंद कर लेना, इसमें डाल लेना एंड डू लाइक दिस, ये पास करना उसमें, तो मोर CO2 गैस विल कम आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स। मुंह से ज्यादा आएगा इसमें। जैसे पास करोगे ना तुरंत लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा आपका। तो डू इट एंड शेयर विथ मी इन द नेक्स्ट क्लास। यस सर। Okay, so let me stop presenting. And now we'll conclude by chanting Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Yes, beta. Sai Ram. साईराम सर। Sai Ram, beta. Sai Ram. Sairam. Yes. Sairam sir. Question you can ask me. Bye sir. Sairam sir. Thank you sir.